Okay. The recording is on. Thank you. All right. This week, I'll be doing this course on marriage and family. ये सप्ताह में हम लोग विवाह और परिवार के बारे में सीखने वाले हैं. Now, usually we do this course a little later on in the 2 months. हम देखते हैं कि ये 2 महीने का जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग आमतौर पे ये जो शिक्षा है अंतिम भाग में हम लेते हैं. But this year, because of certain personal reasons, I only have these 2 weeks that I'm able to come and teach. So we moved it to this week, and again next week I will be with you. So कुछ व्यक्तिगत कारण मेरे व्यक्तिगत कारण मुझे आने वाले दिन में मुझे कुछ कार्य है, इसलिए मैंने क्या किया, ये 2 सप्ताह को मैंने ये विषय सिखाने का निश्चय किया. Okay, those of you online students, some of you maybe may lose connection. Please connect back to the class. Thank you. और जितने भी ऑनलाइन है, अगर लूज कनेक्शन की वजह से आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं. आप All right. So, so that's why we're doing this course today in the second week, but usually we'll probably do it, in the 7th or 8th week. आमतौर पे हम ये जो कोर्स है 7वें या 8वें सप्ताह में करते हैं, लेकिन मेरे कारण ये कोर्स को हम लोग दूसरे सप्ताह में कर रहे हैं. Right, but anyway, we are going to learn some things together. तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इसके बारे में सीखने वाले हैं अब. All right. So let's get started. आइए हम शुरू करेंगे. And we are going to do lesson. Go to chapter 1, please. आइए हम पहले अध्याय में आ जाएंगे. Also, I want to apologize. Today I will be doing only 1 hour of class. मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि आज मैं केवल 1 घंटा आपको सिखाने वाला हूं. Not because I don't love to teach. इसका कारण ये नहीं कि मुझे सिखाना अच्छा नहीं लगता. But we are having a building project that's going on. तो हमारा वो कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वहां पर. And we have a meeting for that. And because other people are involved, architects and others, I could not change the time, so I have to go to that meeting. तो जितने भी अधिकारी है वहां पे आ जाने वाले हैं, तो आज हम लोग का मिलने का समय निश्चित हो चुका था, इसलिए मैं बदल नहीं सकता है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है आज. So please forgive me. मुझे क्षमा करें. I'll do only 1 hour. आज मैं केवल 1 घंटा करने वाला हूँ. But we will cover, we will cover all that we need to do in this course. लेकिन ये पूरा हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे. All right. So let's go to lesson number 1. आइए अध्याय नंबर 1 पे आ जाएंगे. What we want to do before we, so let me introduce this course. One of the most important things in our lives is the aspect of marriage and family. और बहुत से महत्वपूर्ण हमारे जीवन में ये बात को रखता है कि विवाह और परिवार. It comes second only after our relationship with God. ये परमेश्वर के रिश्ते के बाद में ये रिश्ता आता है. This is very important. ये बहुत महत्व रखता है. It is more important than ministry. ये सेवकाई से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है. It's more important than the job or the career or whatever we have. जो भी आपका जीवन है या जीवन का करियर है या उससे भी बहुत महत्व रखता है. Because if marriage and family, it's not going well, usually every other area of our life gets disturbed. अगर आमतौर पे अगर विवाह और परिवार ठीक से नहीं चल रहा है तो जितने भी बाकी क्षेत्र है उसमें गड़बड़ी हो जाती है. So even if you are a wonderful person who loves God, अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो जो परमेश्वर को प्रेम करते हो, you're really passionate about serving God, अगर सब कुछ आपको इच्छा है कि परमेश्वर को सेवकाई करने की, and suppose things don't go well in your marriage, in your family, अगर आपके परिवार में और आपके विवाह में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, it can hinder many things in what you can do in the ministry. तो ये आपको रुकावट का कारण बन सकता है सेवकाई करने के लिए. Sometimes life and ministry almost it gets so affected because of a bad marriage or a bad family.
कभी कभी मतलब जीवन और सेवकाई इसमें बहुत प्रभाव गिरता है। इसका कारण ये है कि जब अगर जीवन बराबर नहीं होगा, परिवार का विवाह जीवन, So this aspect that we are going to learn is very important for all of us. जो ये विषय हम सीखने वाले बहुत महत्व रखता है। I'm assuming that most of you here are single, you're not yet married. मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग सिंगल है, अविवाहित है। Some of you may be married. कोई तो शायद That's शायद किसी किसका शादी हुआ रहेगा। I know Pastor Rajesh is married. मुझे पता है कि पास्टर आशीष शादीशुदा है। So we are married people. हम लोग शादीशुदा लोग हैं, We have our families. हमारे पास परिवार है। But maybe many of you are still young and still single. बहुत सारे लोग जवान है, किशोर अवस्था में है और अभी भी अविवाहित है। So it's important that you learn these things. ये बहुत महत्व रखते हैं, इस बातों को आप सीखे। And be very careful about whom you marry and how the kind of marriage you are going to have. सचेत रहो, जागरूक रहो, किस व्यक्ति से विवाह करने जा रहे हो। So hopefully as we go through this course, our understanding of marriage, family will be shaped by the word of God. मैं आशा रखता हूं कि जब विषय सीखने जाएंगे, इसके जरिए हमारा विवाह, हमारा परिवार परमेश्वर के वचन के जरिए आकार में आएगा। Right? Our understanding of marriage and family should not be shaped by the world. तो हमारा जो विवाह का जो समझ है वो दुनिया के हिसाब से नहीं आना चाहिए, संसार के हिसाब से। It should be shaped by the word of God. इसका जो प्रशिक्षण है, इसका जो आकार है, परमेश्वर के वचन से आना चाहिए। And so some of the things that we are going to cover first of all is getting a biblical understanding of marriage. और सबसे पहला हम इस बात को देखने वाले हैं कि बाइबल क्या कहती है विवाह के बारे में। How you can prepare yourself for marriage. आप अपने विवाह के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। How to find the right person for your life. किस तरह सही व्यक्ति को हम प्राप्त करें। Right? And then how to together build a strong marriage. और किस तरह साथ में मिलकर एक मजबूत विवाह को बांधे। So we will go over some of these things. ये इस बातों से हम जाने वाले हैं। All right? And you say, well, I can't practice it right now. आप बोल सकते कि मैं इसको अभी लागू नहीं कर सकता हमारे जीवन में। I know you can't practice it right now, but whatever you learn, please keep it with you for time to come. तो आप बोलेंगे शायद अभी ऐसा बोलते रहिए कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं इसको अभी लागू नहीं कर सकता, लेकिन जो सीख रहे हैं आप वो सीखे और आने वाले दिन में जब आपका विवाह होगा तब आपका इसका अनुकरण कर सकते हैं। Amen? Amen. And you have this book with you, so you take this book home, and when it comes time for your marriage, you come back and read this book. ये किताब आपके पास है, आप इसको घर पे लेके जा सकते हैं, जब आपका विवाह होगा तब जाके इस किताब से आप पढ़ सकते हैं। All right? So, let's get started. आइए हम पढ़ना शुरू करेंगे। Let's go please to Genesis chapter 2, verses 18 to 25. उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय 18 से 25 तक। We'll read that in Hindi, please. यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक साथी बनाऊंगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर भूमि से सब जाति को, बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने बनेले पशु आकाश के सब भांति को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। इसलिए मनुष्य ने घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई उचित सहायक न मिला। तब यहोवा ने परमेश्वर ने मनुष्य को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक ही पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उस मनुष्य से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और मनुष्य ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि हर नर से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति को अपनाएगा और एक तन हो जाएंगे। और पुरुष और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। So we read this at the very beginning of the Bible. हम देखते हैं कि बाइबल की शुरुआत में इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। And what do we see? After God created
man, Adam, and put him in the garden, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और उसने एदन बाग में उसको डाल दिया गया, everything was very nice, अब वहां पे बहुत सब कुछ अच्छा था, beautiful garden. बहुत सुंदर गार्डन था, वहां बगीचा था, There were all these animals and birds that God had created. पशु पक्षी वहां पे सब सुंदर थे वहां पर बहुत, And yet, Adam was alone. फिर भी आदम अकेला था। And God said, of all the animals, all the things He had created, He's saying, He still needs a companion. तो परमेश्वर ने जब कुछ देखा सब अच्छा था, लेकिन उसने जब आदम को देखा उसने कहा आदम को अभी भी एक सहायक की जरूरत है। That's what we see in verse 18. हम देखते हैं कि 18 वचन में हम पढ़ते हैं, So God created everything, and yet Adam was alone. God said He needs somebody that is suitable for him. जब परमेश्वर देखा सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे उसने आदम को देखा उसने कहा ये अभी भी अकेला है, इसे सहायक की जरूरत है। So तो sometimes you have the question, is God's will for me to get married, or is God's will for me to stay single? कभी-कभी आपके दिमाग में ये सवाल आता है, क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे शादी करना है, कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अविवाहित रहूं? We can say very confidently that by default it is God's will for every person to get married. और परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई शादी करे, Right? By default, it is, we can understand, unless God very specifically puts it into your heart saying you don't need to get married. ये परमेश्वर की इच्छा है। आमतौर पे देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई विवाह करे, लेकिन कभी कभी किसी को परमेश्वर कहता है तो वो व्यक्ति अविवाहित रह सकता है। Otherwise, you can assume, very based on this verse 18. आप देखो 18 वचन के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अकेले रहना अच्छा नहीं है। Right? Based on the scriptures. God wants you to have your spouse, your marriage partner, life partner. और परमेश्वर चाहता है कि आपको एक सहभागिता मिले या फिर आपको साथ में सहवासी के लिए आपका पार्टनर मिले, Somebody who is suitable for you. जो आपके लिए योग्य हो। Right? So that's what happened to Adam. वो आदम के साथ में ऐसा ही हुआ। And you see in verses 19 and 20, God brought all these animals. Adam was giving names to all of them, but still he was lonely. तो देखो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे पशुओं को और सारे पक्षियों को आदम के पास लेकर आया। आदम ने उनको नाम दिया, लेकिन आदम फिर भी अकेला था। Right? He had all these animals, all these birds, but he was still alone. तो देखते सब कुछ पशु पक्षी था, फिर भी आदम अकेला ही था। And so God himself designs marriage. तो परमेश्वर ने फिर खुद विवाह की रचना की। God makes the woman, परमेश्वर ने स्त्री को बनाया and he brings her to Adam. और उसने आदम के पास लेकर आया। And Adam recognizes, oh, this is the person for my life. तो जैसे ही परमेश्वर ने उसको लेके आया तो आदम ने उसको पहचाना और कहा ये मेरे जीवन साथी है। So, some important things for us to understand. सब एक महत्वपूर्ण आपको बात समझ में आना है। Marriage was designed by God. जो विवाह है ये परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, अभिकल्पना है परमेश्वर की। Marriage was not designed by society. समाज ने इसको अभिकल्पना नहीं किया। Marriage is not man's idea, marriage is God's idea. ये जो विवाह है ये मनुष्य का विचार नहीं है, ये परमेश्वर का विचार है। It was not society that created marriage. There was no society. तो वहां देखते कि समाज ने नहीं बनाया, उस समय पे समाज था ही नहीं। I understand. क्या आपको समझ में आ रहा है? So that marriage is something God designed, that God instituted. तो विवाह ऐसा है जो परमेश्वर ने रचाया, परमेश्वर ने इसकी स्थापना की। Therefore, इसीलिए- marriage is a sacred thing. इसलिए विवाह जो पवित्र होता है, Yeah, it's a holy thing. ये पवित्र शुद्ध होता है, Because it is God who designed it. ये परमेश्वर ने बनाया है। It is God who instituted marriage. परमेश्वर ने इस विवाह की स्थापना की। Are you with me so far? क्या आप मेरे साथ में हो अब तक? God designed marriage.
परमेश्वर ने विवाह की रचना की, Therefore, marriage is a sacred thing. It's a holy thing, इसलिए विवाह जो पवित्र प्रतिज्ञा है, right? Marriage is not man's idea. ये कोई मनुष्य की कल्पना नहीं है, God designed it. परमेश्वर का हाथ इसके अंदर है। So, uh, in Matthew chapter 19, we see that the Lord Jesus himself referred to Genesis chapter 2. हम देखते हैं कि मत्ती के 19वें अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं उत्पत्ति के अध्याय पर गौर किया और कहा। And let's focus now just very carefully in Matthew 19 and verse 5. हम पढ़ते हैं मत्ती 19 का इसका 5वां वचन। Yes, please. कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। Yes. So, we will talk more about this later, but I just want to mention it here. मैं आगे इसके बारे में और भी बात कर, लेकिन अभी कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं आपको। It says, a man will leave his father and mother. और यहाँ पे कहता है कि व्यक्ति जो है अपने माता पिता को छोड़ता है। Now, although it says man, what's implied is both man and the woman are going to leave their father and mother and they are going to come and be joined together. हम देखते हैं कि जब यहाँ मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य का अर्थ पति पत्नी को ये परस्पर बताता है, ये दोनों अपने परिवार से होकर इनका एक अलग मिलन और एक परिवार होगा। Right? So in marriage, what is happening? शादी में क्या होता है, विवाह में क्या होता है? We are leaving other earthly relationships in order to be joined together with one other person. विवाह में आमतौर पे विवाह पे क्या होता है, हम जितने भी पृथ्वी के हमारे रिश्तेदार हैं उनको छोड़कर हम दो एक होते हैं और एक मिलन होता है और हमारा एक नया रिश्ता शुरू होता है। That doesn't mean, we are abandoning our family. We're just saying that the level of relationship changes. तो हम ये नहीं कहते कि आप अपने पूरे परिवार को त्याग दें, लेकिन हम बोलते हैं उन पे जो निर्भर रहने का जो कारण है, वो निर्भर जो स्तर है वो बदल जाता है। Don't go and say, Mama, Papa, Tata, I'll never see you again. इसका अर्थ ये नहीं कि अपने माता पिता को बोलिए कि हम जा रहे, टाटा बाय बाय। No, they're still your parents. वो अभी भी आपके माता पिता है। You're still their daughter or son. अभी भी उसके आप पुत्र और कन्या हो। But when you get into marriage, that marriage relationship becomes your most important earthly relationship. जब आप विवाह में जुड़ जाते हो, तब विवाह सबसे रिश्तेदार में सबसे प्रथम रिश्ता आपका विवाह हो जाता है। Right? That is first, then comes relationship to other family members, your विवाह parents का and so रिश्ता on. जो है वो पहले आता है, उसके बाद में बाकी के रिश्तेदार आते हैं। You understand that? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, we will talk more about that later. इसके बारे में और भी अधिक से आने वाले समय में बात करेंगे। But the next thing about marriage is we must understand that marriage is a good thing. दूसरी एक बात बताना चाहता हूं, विवाह एक अच्छी बात है। Proverbs 18 and verse 22. नीति वचन 18-22 में कहा गया है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। So again, it's talking from a man's perspective, but it's also true from a woman's perspective. यहाँ पे एक मानव के दृष्टिकोण से बात कर रहा है, लेकिन बाइबल स्त्री के दृष्टिकोण से भी ये बात कर रहा है। It says, when a man finds a wife, he finds a good thing and obtains favor from God. यहाँ पे लिखा है कि व्यक्ति जब विवाह करता है तो उत्तम पदार्थ को वो पाता है। And it's true from the wife's perspective also. और ये पत्नी के दृष्टिकोण से भी सही है। We can also say when a woman finds a husband, she finds a good thing and obtains favor from God. यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर पत्नी ने एक पति को पाया तो उसने उत्तम पदार्थ को पाया। Why? क्यों? Because it is God who designed marriage. क्योंकि परमेश्वर इसका रचयिता है। And marriage is a good thing. विवाह एक अच्छी बात है। And in the place of marriage, it's a place of favor because we are doing what God wants done on the earth. विवाह एक परमेश्वर के से अनुग्रह है, क्योंकि हम वही कार्य कर रहे जिस कार्य को परमेश्वर ने हमारे लिए रचा था और हम वही दोहरा रहे हैं। From the very beginning, when God put Adam and Eve together, He blessed them
and he said, be fruitful and multiply. और शुरुआत से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब मिला उसने उनको आशीष किया और कहा फूलो और फलो। So them coming together was a place of God's favor, a place of God's blessing. और तब वो लोग दोनों एक स्थान पे आते हैं, एक स्तर पे आते हैं जहां परमेश्वर का अनुग्रह उन पे आता है। So understand this. इसको समझिए Marriage is a good thing. It's a place of God's blessing and favor. और इसको समझे कि विवाह एक अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर ने रचा है। तुम उस स्थान पे आते हो जहां परमेश्वर का अनुग्रह तुम प्राप्त कर सकते हो। Now, why is this important? क्यों महत्व रखता है? Because क्योंकि marriage is also a very difficult thing. क्योंकि बहुत विवाह भी बहुत कठिन है। So, Pastor, now itself you told marriage is a difficult thing. पासवान अभी आपने बोल दिया विवाह बहुत कठिन बात है। Why is it difficult? Because you have two people who have to learn to walk together. तो विवाह इसीलिए कठिन है कि दो व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, उनको एक साथ में चलना पड़ता है। Right? And they're not exactly the same. Each one has their own ideas. हम देखते हैं कि दोनों अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, दृष्टिकोण अलग होते हैं। They may come from different backgrounds. हम देखते हैं कि वो अलग अलग स्थानों से आते हैं। So it's not always an easy thing. ये बहुत आसान बात नहीं होती। So in reality, there are going to be challenges in the marriage. हम देखते हैं कि वास्तविकता से विवाह में बहुत सारी चुनौती होती है। But that's when we must remind ourselves, marriage is a good thing because it was designed by God and it's a place of God's blessing and favor. तब हमको ये स्मरण दिलाना चाहिए, अरे परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर इस विवाह का रचयिता है। हम जब विवाह करते हैं तब उस स्तर पे आते हैं जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह में प्राप्त होता है। So even though there may be some challenges and difficulties, we have to approach it with this understanding. This is a good thing. We are in a place of God's blessing. We are in a place of God's favor. अगर भी हम जीवन में चुनौती, विवाह में चुनौती से जा रहे, कठिन से, लेकिन हमको ये बात जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे विवाह को आशीष किया है। So keep it in your mind that marriage is a good thing. आप अपने बुद्धि में रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि विवाह एक अच्छी बात है। Amen? आमीन। And it's a place of God's blessing and God's favor. और ये वो स्थान है जहां परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा हमें मिलती है। Right? Next, marriage is an institution that should be honored. विवाह एक ऐसी संस्था जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। Let's read Hebrews 13 and verse 4, हम please. देखते हैं कि इब्रानी किताब इसका 13 अध्याय 14 वचन, विवाह का आदर करे और पति पत्नी के बीच में यौन निकटता की पवित्रता की रक्षा करे। परमेश्वर अनैतिक यौन के विरोध में एक दृढ़ रेखा खींचता है। So, the Bible says, honor marriage, and that oneness that happens in marriage is a sacred thing. और यहाँ पे देखते हैं कि विवाह का आदर करे और जो यौन निकटता है उसका भी हम शुद्ध, उसको भी हम शुद्ध समझे। So, this is important because in the world, they don't think like this. और जो दुनिया है, संसार जो इसके बारे में सोचता नहीं है। They don't look at marriage as something that is sacred, that is holy before God. और जो संसार है विवाह को कभी पवित्रता या शुद्धता की दृष्टि से नहीं देखता। In many parts of the world, in many cities, one boy, girl, they like each other, they decide to live together. हम देखते हैं कि विश्व में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कोई किसको पसंद करता है और वो ऐसे ही रह जाते हैं। So how come you're living together without getting married? आप एक साथ में कैसे रह सकते हो बिना विवाह के? No, we like each other. This is our marriage. और वो कहता है कि नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम ऐसे रह जाएंगे बिना विवाह के। We cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते। As believers, the Bible is telling us, विश्वासी होने के नाते बाइबल ऐसा हमें सिखाता है, honor marriage and keep it sacred. और विवाह का आदर करे और उसे पवित्र रखे। Right? So when we think about marriage, think this is a sacred institution. It's holy to God. जब भी हम विवाह के बारे में सोचे, उसका आदर करें और यही सोचे कि परमेश्वर ने इसको शुद्ध और पवित्र रखा है। The next biblical understanding of marriage is that marriage is a solemn covenant. It's a solemn promise. यहाँ पे देखते हैं विवाह एक गंभीर वाचा या पवित्र प्रतिज्ञा भी हम कह सकते हैं। We see this in Malachi chapter 2, verses 13 and 14. हम Let's यहाँ read पे it, देखते please. हैं कि यह अपराध
तुमने आराधना के स्थान को रोने वाले और भरमाने वाले आंसुओं को भिगो दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी भेंट की ओर से दृष्टि तक नहीं करता, न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगिनी ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया। So notice two things in verse 14, ये दो बात को हम यहाँ पे देख सकते हैं in Malachi 2:14. मलाकी 2:14 के अंदर। Marriage, first of all, it is made by those promises that we speak. और हम यहाँ पे देखते हैं कि विवाह उससे संपन्न होता है जो वचन हम एक दूसरे को विवाह में देते हैं, And God is witness to those promises. और परमेश्वर उस वचन का गवाह है। So, what happens during a wedding ceremony? The man and woman, they stand and they make their promises to each other. आमतौर पे हम जब देखते हैं कि जब विवाह किसी का होता है तो क्या करता है, एक दूसरे से हम वाचा कबूल करते हैं, And God is listening. और परमेश्वर सुनता है। And by the words they are speaking, they are actually establishing a covenant. और जब वो वाचा को बोलते हैं तो प्रतिज्ञा को स्थापित करते हैं उस समय वो लोग। In the Bible, a covenant is a solemn promise that is life for life. It can only be broken when the person dies. यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर जब कभी कोई किसी से प्रतिज्ञा करता है, वो जीवन भर तक वो प्रतिज्ञा के आज्ञा पालन करता है। अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो करता ही रहता है। All right. So when we think about marriage, we should think about it as a solemn promise that you made before God, and it's a covenant that you must keep for life. जब आप विवाह के बारे में सोचते हैं तो आप उससे वाचा बांधते हो और एक पवित्र प्रतिज्ञा भी परमेश्वर के सामने बांधते हो। Right? So it's not something, that we enter into very lightly, casually. औपचारिक रीति से हम वहां जा नहीं सकते कि आराम तौर से साधारण रीति से हम नहीं लेना चाहिए। I'm making a promise before God, मैं परमेश्वर के सम्मुख ये वादा कर रहा हूँ, and God will hold me to that promise. परमेश्वर मुझे इस वचन के जरिए परखेगा। Right? So marriage is a solemn covenant. और जो विवाह है जो गंभीर प्रतिज्ञा है। Another important thing to understand about marriage is it's between one man and one woman only. तो विवाह केवल एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में होता है। Right? Let's read that we read this verse here in Genesis 2:24 and 25. We'll read it again. आगे ये वचन को पढ़ते उत्पत्ति 2:24-25। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी को अपनाएगा और एक तन होंगे, और पुरुष उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और वो न लज्जाते थे। Right? So it's the man and the woman. ये स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्ता It's very clear in the Bible. बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से कहा गया है। Now, sometimes in some parts of the world, and it's slowly happening in India also, we say, okay, marriage, we want marriage between same sex, between two men or two women. हम कभी बाहर भी हो रहा है, भारत के और भारत के अंदर भी अभी आ रहा है कि समलैंगिक विवाह, मतलब पुरुष से पुरुष, स्त्री से स्त्री, ऐसा विवाह किया जा रहा है। And that is against God's design. और वो परमेश्वर के विरुद्ध है। वो That is not what God designed for marriage. परमेश्वर ने विवाह की रचना ऐसे नहीं की थी। A man will be joined to his wife. और देखो, पुरुष स्त्री से जुड़ेगा, अपनी पत्नी से जुड़ेगा। A man and a woman. स्त्री और पुरुष जुड़ेंगे। That is God's design for ये marriage. परमेश्वर ने विवाह के लिए रचा है। And that is very clear biblically. ये बाइबल से बहुत स्पष्ट रीति से कहा गया है। Right? Another important aspect about marriage दूसरा जो इसका पहलू, विवाह का पहलू ऐसा है, is that marriage is a union of two people. यहाँ पे देखते कि विवाह दो का मिलन है। It tells us in Genesis 2:24, the verse that we read, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी को अपनाएगा और वे एक तन बन जाएंगे। the two will become one. यहाँ पे हम लिखा है कि दो एक तन बन जाएंगे। Right? So when you think about marriage, it's the union, the coming together of two lives. जब विवाह के बारे में सोचते हैं तो ये मिलन है दो व्यक्ति का एक होने का। So when you think about marriage, जब आप विवाह के बारे में सोचते हो, don't just think about, this person looks very nice, I like her or I like him.
और जब विवाह के बारे में ऐसा मत सोचो ये आदमी बहुत अच्छा है या वो स्त्री बहुत अच्छी है ऐसा। It's not just the outward appearance that's going to make a happy marriage. तो जो बाहरी रूप से विवाह सुंदर नहीं होता, It's more than that. उससे बढ़कर है वो। Because it's the union of two lives. और ये दो जीवन का मिलन है। And for two to become one, there has to be agreement, there has to be compatibility in many areas. हम देखते हैं कि दो लोग के मिलन होना मतलब दोनों एक साथ सहमत होना है, दोनों एक साथ के लिए अनुकूल होना है। Spiritually, emotionally, in the way they relate to each other, they have to be able to come together. ये तो वे लोग बुद्धि से आत्मिक रीति से एक मत होना है अपने जीवन के अंदर। The two are going to become one. तो दो एक होने जा रहे हैं। Are you understanding what क्या I'm आपको saying? समझ में आ रहा है? Yes. So don't just think, or don't just focus on one aspect, maybe the physical appearance. तो कभी कभी एक पहलू को ही मत देखे जो है शारीरिक उसकी उपस्थिति को, जो बाहरी रूप को मत देखे। To become one, it's more than just physical appearance. Spiritually, emotionally, relationally, you have to be compatible. हम देखते हैं कि हमें आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से अनुकूल होने एक दूसरे के साथ। Right? And that's how you're going to be able to become one, come together in unity. और इस तरह आप दोनों एक हो जाते हो, एक मत हो जाते हो, एक मिलन हो जाते हो। Now, becoming one does not mean the other person ceases to exist. दोनों का एक होना मतलब दूसरे व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति नहीं जीता, ऐसा नहीं। So a man and a woman, they come, they're married, they begin this journey of becoming one, but doesn't mean that one of them will disappear. जब दो व्यक्ति एक साथ में मिलन होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति का अस्तित्व वो खो दिया है। Right? It means that they're coming to be united in every way. तो हम देखते हैं कि जब दो लोग एक साथ में आते हैं तो वो एक साथ सहमत होने के लिए आते हैं। They are two independent people. वो दो अलग अलग अभिव्यक्ति है। They still will think the way, very maybe differently from each other. तो दूसरे से भिन्न सोच सकते हैं वे लोग। They may have their own personal likes and dislikes. तो उनका जो व्यक्तिगत होगा पसंद नापसंद। If the husband is from South India, he will like masala dosa, idli. If the wife is from North India, she might like chapati, roti, like that. हम देखते हैं कि अगर पति हो साउथ इंडिया से आता है तो उसको इडली डोसा अच्छा लगेगा, और पत्नी नॉर्थ इंडिया से आती है उसको चपाती और दूसरा कुछ अच्छा लग जाएगा। They will have their own personal tastes. तो वो उनका अलग अलग स्वाद होगा। But yet, they are united in their understanding and how they flow together. लेकिन वो अपने समझ में और जिस तरह वो चल रहे हैं उसमें एक सहमत हो गए। So marriage is really a process of becoming one. तो मैरिज एक विवाह एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक बनते जाते हैं। Right? So keep that in mind. आप इसको अपनी बुद्धि में रखिए। We'll explain it further in the coming days. और आने वाले दिन में इसको हम बताएंगे और भी। But this brings us to one very important instruction in the Bible. यहाँ पे बहुत एक महत्व निर्देशन बताता है बाइबल हमें। The Bible is very clear that an unbeliever, a believer cannot be joined together with an unbeliever. बाइबल हमें एक अच्छा निर्देशन यहाँ पे देता है, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ में नहीं जुड़ सकता, Especially when it comes to marriage. विशेष तौर पे जब विवाह के स्तर पे हम आते हैं तब It's very important. ये बहुत महत्व रखता है। Okay, so let's read this passage, 2 Corinthians 6:14 to 18. हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय इसका 14 से 18। अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति या अंधकार का क्या संगति, और मसीह या बिलाइल के साथ क्या मेल, या विश्वासी अविश्वासी का क्या नाता, अरे मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा, फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत खाओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियों होगे। और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। So it's very clear in verse 14.
हम देखते हैं कि 14 आयत में ये बहुत स्पष्ट से कहा गया, don't be yoked together. A believer should not be yoked together with an unbeliever. हम देखते हैं कि अविश्वासी के साथ तुम जुए में न जूतो। So think about marriage. विवाह के बारे में सोचिए आप, Two are becoming one. दो एक होने जा रहे हैं। So what Paul is telling us is, the unbeliever and the believer are as different as light and darkness. हम देखते हैं कि विश्वासी अविश्वासी इतना भिन्न है जैसा प्रकाश और अंधेरा। You can't put them together. आप उनको साथ में नहीं रख सकते। Righteousness and unrighteousness. धर्मी और विधर्मी जैसा। Christ and the devil. और देखते हैं कि मसीह और शैतान की तरह। You can't make them one. वो लोग एक साथ नहीं हो सकते। And that's why he's saying, a believer cannot be yoked together with the unbeliever. इस तरह विश्वासी अविश्वासी के साथ जुए में न जूतो। So we have to be very careful. हमें बहुत सावधान रहना है। So when you are thinking about marriage, जब आप विवाह के बारे में सोचते हो, this must be your first criteria. ये सबसे पहला आपका शर्त होना चाहिए। I must marry a believer. जब भी आप विवाह करें, सबसे पहला शर्त ये होना चाहिए कि मुझे एक विश्वासी के साथ ही विवाह करना है। Is it clear? Any questions? किसी कोई सवाल अब तक? But you say, Pastor, but this the nice person, he likes me so much, or she likes me so much. She's not a believer. Can you please pray and do something? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि ये आदमी, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो मुझे लाइक करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ। ऐसा बोले, क्या आप दुआ करेंगे उसके लिए? ऐसा अविश्वासी के लिए हम बोलते हैं ऐसा। God says, a believer must not be yoked together with the unbeliever. बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि विश्वासी को अविश्वासी के साथ में नहीं जुए में जूतना है। Right? So that's very clear. ये बहुत स्पष्ट है बाइबल के अंदर। Now, as a pastor for the last almost, 25 years here in Bangalore, APC, मैं पासबान होने के नाते 25 साल से बैंगलोर में सेवकाई कर रहा हूँ पासबान के नाते। there have been many times I have to sit with young people. बहुत बार ऐसा मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जवान के साथ में बैठकर I have to tell them, मुझे उन्हें बताना पड़ा, you have to come out of this relationship. तो आपको इस रिश्ते से बाहर आ जाना है, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है you cannot be joined together with a unbeliever. क्यों बाइबल ऐसा कहता है कि विश्वासी होने के नाते तुम अविश्वासी से नहीं जुड़ सकते। Right? And many times it is difficult for them to come out of that relationship. तो कभी-कभी बहुत उनको तकलीफ होता है इस रिश्ते से बाहर आने के लिए। But I have seen लेकिन that मैंने देखा है when they obey God, जब वो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, the result is always good. और जो प्रतिफल है वो बहुत अलग हो जाता है। God blesses them. परमेश्वर उनको आशीष करता है, He blesses their life तो परमेश्वर उनको जीवन को आशीष करता है, because they decided to obey the word of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। And many times, 5 years later, 10 years later, they'll come, Pastor, this was the best decision to obey God. 5 साल के बाद 10 साल बाद वो लोग आते हैं और कहते हैं कि पासबान सबसे अच्छा निर्णय मैंने जीवन में यही लिया था। I can't imagine what would have happened to me if I had gone that way that I was considering at that time. तो मैं सोच भी सकता नहीं मेरे साथ में क्या हो सकता अगर मैं उस व्यक्ति से विवाह करता तो। That is always so it's important for you to keep this in mind. तो आपको बहुत महत्व रहता है, ये बातों को अपने दिमाग में रखिए आप, right? ठीक है? Because marriage is a union of, and spiritually you have to be united. तो जो विवाह है वो मिलन है, आत्मिक तौर से आपको एक होना है। And light cannot be united with darkness. The Christ and the devil cannot be united. प्रकाश अंधकार के साथ जुड़ नहीं सकता और शैतान यीशु के साथ में जुड़ नहीं सकता।
And also, you look at these next two verses, Amos 3:3 and Mark 3:25. यहाँ पे Please. लिखा है आमोस 3:3 में, यदि दो मनुष्य एक साथ ही न जा रहे हो तो क्या वे हाथ में हाथ डालकर चलते हैं? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो घर कैसे स्थिर रहेगा? So in marriage, it's a journey you have to make together. एक विवाह एक सफर है, हम दोनों को सफर में साथ में चलना है. And if you're not in agreement, it's very difficult to go together. अगर आप एक सहमत नहीं हो तो आपको दिक्कत होगी इस सफर पे चलने के लिए. And that's why it's so important, first of all, to marry somebody who is a believer. जब आप विवाह करते हो विश्वासी होना चाहिए. And even beyond that, you have to find out if you are together in agreement. आपको इसके अलावा ये भी देखना है क्या आप दोनों एक सहमत हो क्या. So being a believer is the starting point. और विश्वासी एक प्रथम स्थान है. But we have to look beyond that to see if there is agreement in what God is calling us to do in life. हमको इसके अलावा ये भी सोचना है कि परमेश्वर ने क्या इस बात के लिए मुझे बुलाया है कि नहीं. Because think about this, there are two believers, अब इस बारे में सोचो, दो विश्वासी both love Jesus, दोनों यीशु को प्रेम करते हैं. but one says, God has called me to serve him in Africa. Another says, God has called me to serve him in China. Can they get married happily? तो दो विश्वासी है, दोनों एक सहमत हो गए शादी के लिए. दोनों विश्वासी, एक कह रहा है मुझे चाइना में सेवा करना है, दूसरा कह रहा है मुझे अफ्रीका में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया. क्या वो विवाह कर सकते हैं? हाँ या नहीं? One will be in Africa, one in China. What's the use? एक चाइना एक अफ्रीका में सेवा करना, क्या विवाह कर सकते हैं कि नहीं? So that agreement has to be, you have to be believers, but there also has to be agreement in what God is, the journey you're going to make. आपको सबसे पहले विश्वासी देखना है, उसके बाद में वो बुलाहट में सहमत भी होना चाहिए कि उसकी बुलाहट तुम्हारी बुलाहट मेल खाती है कि नहीं. Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Right? Because you're going to walk together, and can two walk together unless they are in agreement? यदि दो मनुष्य एक साथ में नहीं जा रहे, क्या वो हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं? And the Bible also says here, if a house is divided against itself, it cannot stand. और यहाँ पे ये भी लिखा गया, यदि घर में फूट पड़े तो वो घर स्थिर नहीं रहेगा. Jesus said that. यीशु ने कहा. The last thing that we are going to say about a marriage, a biblical understanding, is a marriage is for a lifetime. यहाँ देखते हैं कि जीवन भर के लिए विवाह का सफर जीवन जिंदगी भर के लिए. Matthew 19 and verse 6. मत्ती इसको 19:6 में दिखा है, इसीलिए अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग न करे. Right? So it's very clear that God designed marriage for a lifetime. और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जीवन भर के लिए विवाह की रचना की. So think about this. इसके बारे में सोचें. In marriage, you are committing yourself to one other person for the rest of your life. और विवाह ऐसा है कि आप अपने आप को जिंदगी भर के लिए दूसरे व्यक्ति जो आपका सहभागिता है उसको समर्पित कर रहे हो. So let's say the young people are about 25. हम उदाहरण Years के तौर of पे age. देखते हैं कि 25 साल का है. They are going to commit, let's say if they're going to live till about, just say for 85, that means they are committing the next 60 years of their life to be with that one person. अगर हम देखते हैं कि जीवन साथी के बारे में, अगर एक सोचो आप कि कोई 25 साल का है और वो 85 साल जीने वाला है, तो अगले 60 साल तक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके साथ ही रहना है 60 साल तक. That's the commitment you're making. वो समर्पण आप कर रहे हो. That's a serious thing. बहुत गंभीर बात है. That for the rest of your life, you're going to be with that person. जिंदगी भर आप उस साथी के साथ में ही रहने वाले हो. So we have to enter into marriage very carefully. इसलिए विवाह में जब प्रवेश करते हो तो सोच समझ के प्रवेश करो. Make sure that you prepare yourself and also choose the right person that you're going to live with.
और ये सोचो कि जिसके साथ में आप विवाह करने वाले हो वो आपके लिए सही व्यक्ति हो, उसके साथ में आपको जिंदगी निभाना है। right? And don't rush into it blindly. और आप तेजी स्फूर्ति के साथ में गड़बड़ी में कोई निर्णय न ले। Don't be pressured into marrying somebody. दबाव के अंदर किसी के साथ में विवाह ना करे। You know, somebody will send you a text message. If you don't marry me, I'm going to end my life. कभी कभी कोई आपको एसएमएस कर देता है, अगर आप मुझे विवाह नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। Right? Don't let anybody pressure you into doing these kinds कोई of व्यक्ति things. आप पे दबाव न डाले शादी के लिए। You're the only person in the whole world. क्या आप दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति हो? That's a lie, no? There's so many others. ये झूठ बात है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। So don't let those kind of statements pressure you into marrying somebody. तो ऐसे तरह के विचार आप पे दबाव न डाले ताकि विवाह में प्रवेश करे। Because this is a very serious decision. ये बहुत गंभीर बात है, Right? You're going to spend the rest of your life Ki- with that one person. क्योंकि आप अपना पूरा जीवन उसके साथ में बिताने वाले हो। All right? So we'll stop here for today. आज यहाँ रुक जाएंगे हम। Any questions? अब तक जो हमने सीखा उसमें कोई सवाल है आपको? I know we just did chapter 1, but any questions that you're thinking about? मैं मानता हूँ एक ही अध्याय मैंने पूरा किया है, लेकिन क्या अब तक कोई सवाल आपके दिमाग में है? कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। Right? Feel free to ask questions. तो आप आजाद हो सवाल पूछने के लिए, कोई डरने Okay. की बात नहीं। You want to ask? Yes, please, go ahead. Yeah. Hello, Sheikh. If God joined two people and they had a destiny to be joined together, then why they have so many problems in life? Why they fight to each other very much? तो उनका सवाल ऐसा था, अगर परमेश्वर ने दो व्यक्ति को एक ही स्थान पे जाने के लिए चुना है तो क्यों विवाह के अंदर इतना झगड़ा कलह होता रहता है? So, sorry, if God has chosen two people to be together, why are they having so many problems? One is because as human beings, we are not perfect. कभी कभी ये एक उसका पहलू ऐसा होता है कि मनुष्य होने के नाते हम सिद्ध व्यक्ति नहीं, परिपक्व व्यक्ति नहीं हम No? लोग। So, God is bringing two imperfect people and He's joining them together. परमेश्वर दो अपरिपक्व लोगों को लेकर आता है, उनको जोड़ता है। And so, obviously, there will be those rough edges where they have to learn how to live together. कभी कभी जीवन में सख्तपना होता है, उसके जरिए हमको सीखना पड़ता है। Right? So that's one thing. And also in marriage, we are changing. We are not constant. People are changing over time. तो हम देखते हैं कि विवाह के अंदर हम एक सा नहीं रहते, हम बदलते रहते। So if we change for the better, that's a good thing. अगर हम अच्छे के लिए बदल रहे हैं तो अच्छी बात है, But if we change for the worse, it's going to cause problems. अगर हम बुराई के लिए बदल रहे हैं तो वो बहुत बुरा उसका परिणाम होगा। So sometimes you hear, before we got married, he was not drinking. After we got married, he started drinking. कभी कभी हम सुनते हैं शादी के पहले वो पीता नहीं था बिल्कुल, लेकिन शादी के बाद बहुत पीने लगा। Right? So then now that person has changed and he's changed for the worse, and obviously there will be problems. तो पहले वो व्यक्ति अलग था, अब वो अलग हो चुका है, बदल चुका है, बुराई में जा चुका है। You know, so these are some realities. Other things we have to also keep in mind is sometimes we face challenges in life, and because of those challenges, it puts pressure on the relationship, and there may be problems. और कभी कभी जीवन के अंदर चुनौती आती है, वो चुनौती हम पे दबाव डालते हैं, दबाव के कारण कभी कभी तालमेल बिगड़ जाता है। Right, so that could be another reason. वो एक पहलू हो सकता है। And lastly, we also have to keep in mind that sometimes, I'm not saying all the time, but sometimes the enemy will try to destroy the marriage. कभी कभी ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी शत्रु जो है हमारे बीच में गड़बड़ी उत्पन्न करता है, So that will also cause conflict. तो वो भी एक उलझन का कारण हो सकता है। So we have to learn how to overcome these conflicts, तो हमें सीखना है कि हम इस उलझन से कैसे उभरे, which we will cover. Yeah? तो हम ये देखेंगे आगे। Good. So please feel free to ask questions.
आप आजाद है, सवाल पूछ सकते हैं आप, कोई डरने की बात नहीं। There's ना nothing घबराते हुए wrong. पूछ सकते हैं आप। Nothing wrong in asking questions. सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। Okay. हाँ, Yes. इसको माइक दीजिए, एक मिनट, माइक ले। Please sit down, sit down. Yes. How to? Praise the Lord, Pastor. Go ahead. Check. Hello. So my question is how to get a suitable partner or how to choose the right person. How to get a right person. How to choose the right person. Yeah. So we will talk about it in the coming chapters. आइए हम आने वाले अध्याय में ये पढ़ने वाले हैं किस तरह सही साथीदार को चुनना है। What we must look for when we are looking for a life partner. How to choose the जब right हम जीवन person. साथी को चुनते हैं तो क्या गुण देखना चाहिए, हम देखने वाले आने वाले दिन में We'll talk about that. Yeah? हम देखने वाले हैं। Question. Mike है आपके पास? Go ahead. Check. गांव में देखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है और लोग बचाए भी जाते हैं, लेकिन जब बच्चों की शादी की बारी आती है तो बहुत मैंने देखा है कि शादी कर लेते हैं, माता पिता दबाव डालते हैं अविश्वासी में शादी करने के लिए। मैंने तो एक लड़की को मना भी किया मत करो, पर उसने कहा कि नहीं मम्मी पापा ने बोला है करना है, तो अविश्वासी में शादी कर लेते हैं। तो ऐसे माता पिता और बच्चों में क्या किया जाए, मतलब उन्हें क्या समझाया जाए? और ये होता है और कोई नहीं रोकता है और पंडितों के द्वारा शादी कराई जाती है। So what happens sometimes children believe and many people doesn't believe, then while they put the pressure on children to marry with unbeliever, that are not there to do, and sometimes the Hindu priest conduct the marriage. How we can make them understand they are doing wrong? Yeah. So this is an important question. ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। And there is no easy answer to this question. इसका बहुत आसान उत्तर नहीं है। Right? I'll talk more about it tomorrow. इसके बारे में कल गहराई से बोलूंगा मैं आपसे। Okay, so tomorrow's class we will start with your question. कल का जो क्लास है तुम्हारे सवाल से हम शुरू करेंगे। Okay, you remind me if I forget. कल आप मुझे याद दिलाना। Question, then I'll remember. Okay, we'll stop here for today. आज यहाँ यही समाप्त करेंगे। In the next 2 hours after you take your break, आपका जब विराम का समय हो जाएगा उसके बाद में 2 घंटे बचे हैं। try to answer the questions here at the end of chapter 1. तो अब देखते कि यहाँ पे जो सवाल लिखा गया पहला और 2 का, You can write your answers in your notebook itself. तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 सवाल लिखा गया है, तो जो भी इसका जवाब आप लिख सकते हैं Right? बैठकर। So read chapter 1, read this chapter, आप पहला जो अध्याय है उसको पूरी रीति से पढ़ना है ठीक से, and then answer the questions in your book itself. और आपके किताब में उसका उत्तर आप लिखना है आपको। Can you all do that? क्या आप लोग करेंगे? 1 2 But 3, don't copy your neighbor's answer. लेकिन अपने बाजू वाले का कॉपी मत करो। You देख के मत you लिखो। write your own answer आप अपना खुद का आंसर लिखो, because this is for your learning. क्योंकि ये आपके सीखने के लिए। Okay? And ठीक है। then if you finish that, then go ahead and read chapter 2. अगर ये हो जाता है आपका तो दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू करें। It's very important because it talks about how to prepare yourself for marriage. और ये दूसरा जो अध्याय बहुत महत्व रखता है विवाह के लिए कैसे तैयार होना। Right? So in the next 2 hours, this will keep you busy. तो ये 2 हफ्ते आपको व्यस्त, 2 घंटा जो आगे का है ये बातें आपको व्यस्त रखेगा। Right? And tomorrow we will start with chapter 2. और कल जो है दूसरे अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। No, we will start with your question first. नहीं, हम उसके सवाल से शुरू करेंगे। We'll start with that, then we'll go to chapter 2. उसके सवाल के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद में दूसरा अध्याय में आएंगे। Is that okay? All right? ठीक Now है। you can take a break. Thank you. आइए हम विराम लेंगे।